Okay, good morning, everyone. What a beautiful Sunday morning. Thank you for everyone who is attending this live. Uh, in today's webinar, we'll be discussing about rollover analysis. We are just done with the month end. We are just ended the month end contract, so it is a perfect time to do the rollover analysis. So, as usual, Jay Vora will be taking you through the presentation for the first 30 minutes, 45 minutes, 1 hour, and then we'll be opening up the Q&A. In the meanwhile, those who are just joining in live, if you have not used Strike, go to web.strike.money and start using it. So, Jay, you can start it off. Yeah. So, hi, I good hope morning, everyone. you're able to hear Jay's voice. If you can confirm on the comment section. And Jay, maintain, you know, English language, please. Yeah. So this Okay. time, what we'll do is that the explanation part. A lot of time we have done it in English. So I'll also tell the people who want to see it in English specifically. But we had got a lot of request for Hindi. So this time, the explanation part will be in Hindi. But the stock discussion, we'll do it in English. Okay. Yep. Perfect. So You can start. Yeah. so yeah, I'll just share my screen. So यहाँ पे हम the way we'll approach this webinar is that first 30 minutes में explanation दूंगा about the rollover analysis and how to think about it, and then we can move to discussing the stock and its trends. Okay. And later on, the discussion of the stock based on rollover, that we'll do it in Hindi or English. But the explanation part this time around, we will do it in Hindi. Okay. And just for the viewers who want to know that where we have done the explanation part. So if you see our Strike platform, in the help button when you go, there is this rollover analysis video that is there. So this is the same PPT which I'll be using over here, and over here it has been explained in English. Okay. So if you find any problem in understanding Hindi, please go through this video as well. It will be helpful for you to understand the rollover analysis concept. So yes, coming back to the presentation. So o- so in open interest analysis, you know हमको एक बेसिक जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कौन से सिनेरियोज को हम लॉन्ग बिल्टअप बोले, कौन से सिनेरियोज को हम शॉर्ट बिल्टअप बोले, कौन से सिनेरियोज को हम कवरिंग बोले, मतलब शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग. सो इसमें ऐसे होता है कि अगर प्राइस अप होता है और ओपन इंटरेस्ट अप होता है, तो देन हम कहते हैं कि लॉन्ग बिल्टअप है एंड द इंटरप्रिटेशन इज बुलिश. अगर प्राइजेस डाउन है और ओपन इंटरेस्ट अप है, ओके, तो इसे हम शॉर्ट बिल्टअप कहते हैं, बिकॉज प्राइजेस नीचे गए हैं और लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कैरी फॉरवर्ड किया है, जिसके वजह से ओपन इंटरेस्ट हायर है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज शॉर्ट बिल्टअप. अगर प्राइजेस अप है, ओपन इंटरेस्ट डाउन है, मतलब जो भी शॉर्ट्स थे, ओके, दोज आर गेटिंग अनवाइंड, ड्यू टू विच शॉर्ट कवरिंग रैली आ रही है, और इसी के चलते हम इसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं. जब प्राइजेस नीचे जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाता है, वी कॉल इट एज लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे लॉन्ग थे, अभी वो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं, इसके वजह से प्राइजेस पे प्रेशर आ रहा है, और बिकॉज वो सारे लॉन्ग भी अनवाइंड हो रहे हैं, तो इसके वजह से ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा है, एंड वी कॉल इट एज लॉन्ग अनवाइंडिंग. ओके. तो ये चार एक बेसिक बेसिस है टू अंडरस्टैंड के स्टॉक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, या शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है. ठीक है. नाउ ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझने को, एंड इसमें कोई फेजेस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
पहला फेज ये है, हम मान के चलते हैं कि अज्यूम करते हैं कि पहला फेज है कि लॉन्ग बिल्टअप का फेज होता है जहां पे ओपन इंटरेस्ट और सब कुछ एकदम लाइट होता है, बट देन जब प्राइजेस ऊपर जाने जाते हैं और लोग भी अपने लॉन्ग कैरी करने लगते हैं, तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, एंड दैट इज द फेज ऑफ लॉन्ग बिल्टअप। ठीक है, फिर वो ओपन इंटरेस्ट एक पॉइंट पे इतना हाई हो जाता है कि बियॉन्ड विच द ओपन इंटरेस्ट में, मतलब ओपन इंटरेस्ट का एक लिमिट हिट हो जाता है, बिकॉज या तो फिर क्या होता है, कभी कभी यू विल सी कि वो स्टॉक बैन में आ जाता है एंड सो ऑन, एंड देन जो भी पोजीशन है वो इवेंचुअली अनवाइंड करना पड़ता है। Okay, and that what triggers a long unwinding phase, which is phase 2। ठीक है, फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग में जब भी जाते हैं तब बिकॉज वो लॉन्ग अनवाइंड हो रहे हैं तो वो प्राइजेस पे प्रेशर डालते हैं और प्राइजेस नीचे जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस इज के टेक्निकल लेवल्स हिट हो जाते हैं, ब्रेकडाउन आ जाता है, एंड दैट्स वेयर जो 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 ट्रेंड फॉलोअर्स होते हैं और सो ऑन, तो उन लोग को ये दिखता है कि स्टॉक में ब्रेकडाउन हो रहा है, एंड दैट्स वेयर पीपल स्टार्ट फॉर्मिंग शॉर्ट पोजीशन, मतलब वो शॉर्ट पोजीशंस बनाने लग जाते हैं स्टॉक में, क्योंकि वो सोचते हैं कि टेक्निकल ब्रेकडाउन है, एंड दैट इज व्हाट पुट्स प्रेशर ऑन द स्टॉक प्राइस, और स्टॉक प्राइस नीचे जाते जाता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, एंड दिस इज द थर्ड फेज विच इज शॉर्ट बिल्टअप। ओके, एंड शॉर्ट बिल्टअप जब भी होता है विच इज द थर्ड फेज, उसके बाद एक ही चीज होनी है, विच इज दैट अगेन वो शॉर्ट बिल्टअप होते होते एक ओपन इंटरेस्ट एक लेवल पे पहुंच जाता है जिसके बियॉन्ड ओपन इंटरेस्ट और बढ़ नहीं सकता है, राइट, बिकॉज सारे पब्लिक ने शॉर्ट किया है, ड्यू टू विच द ओपन इंटरेस्ट इज वेरी हाई, एंड देन द नेक्स्ट फेज बिकम्स कि वो शॉर्ट कवरिंग आनी है, एंड शॉर्ट कवरिंग जब आती है तब सारा ओपन इंटरेस्ट घट जाता है एंड प्राइसेस गो हायर, एंड दिस इज द फोर्थ फेज विच इज शॉर्ट कवरिंग, एंड देन अगेन ये साइकिल रिपीट होते रहता है, बट टिपिकली मैंने मार्केट में ये ऑब्जर्व किया है कि ज्यादा करके फेज 3 फेज 4 ही चलते रहते हैं। ओपन इंटरेस्ट लो होते हैं, ठीक है, एंड वहां से लोग शॉर्ट करना चालू करते हैं जिससे ओपन इंटरेस्ट स्पाइक होता है, फिर वो शॉर्ट्स, मतलब अगर स्टॉक एक सपोज इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आता है और वो सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, एंड ऑलरेडी सिस्टम में बहुत सारे शॉर्ट्स भरे हुए हैं, तो लोग उसे कवरिंग करना चालू करते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आइडेंटिफाई के कौन से स्टॉक्स में बहुत सारे शॉर्ट्स है, एंड वो शॉर्ट्स होने के बावजूद ओके विच आर द स्टॉक्स जहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे फेजेस में क्या होता है, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होल्ड हो रहे हैं, तो इवेंचुअली शॉर्ट्स है वो पैनिक हो जाते हैं, एंड बहुत जोर से शॉर्ट कवरिंग रैली ट्रिगर होता है, एंड टिपिकली जो जो शॉर्ट कवरिंग रैली में, आई मीन शॉर्ट कवरिंग रैली इज द वन विच इज वेरी पावरफुल, क्योंकि बहुत सारे लोग कैसे फोमो में या पैनिक में आके शॉर्ट कर देते हैं, ये थिंकिंग दैट के एक्स वाई जेड न्यूज जो भी स्टॉक के लिए आया है वो बहुत खराब है, एंड द स्टॉक विल गो डाउन अ लॉट, ओनली टू रियलाइज बाद में रियलाइज ये होता है कि नहीं, ये एक्चुअली में इतना नेगेटिव नहीं था, एंड दैट्स वेयर दे एंड अप कवरिंग देयर शॉर्ट्स। ओके, तो ज्यादा करके हमें ये फोकस करना है कि कौन से स्टॉक्स में बहुत सारे शॉर्ट बने बने हुए हैं, एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया नहीं तोड़ते हैं, बिकॉज दोज आर द वंस जहां पे शॉर्ट कवरिंग होगा, एंड शॉर्ट कवरिंग से ओपन इंटरेस्ट एकदम लो आ जाएगा, राइट, जब भी ओपन इंटरेस्ट लो आ जाता है तब ये कहा जाता है कि स्टॉक में पोजीशन बहुत लाइट है, अगर पोजीशन बहुत लाइट है तो कहीं ना कोई ट्रेंड पिकअप होने वाला है। ओके, एंड दैट इज वेयर एक्चुअली में मैं जैसे कि मैंने बोला कि वापस वो फेज चालू हो जाते हैं, विच मीन्स कि ये अगर ओपन इंटरेस्ट कम होता है शॉर्ट कवरिंग में, राइट, तो अल्टीमेटली वापस लॉन्ग बिल्टअप होने चालू होते हैं, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग में ऑलरेडी ट्रेंड अप होने लग गया है। अभी जब अप होने लगता है तब बहुत सारे जो ट्रेंड फॉलोअर्स रहते हैं उनको लगता है कि हाँ अप ट्रेंड होना चालू हो गया है, सो दैट्स वेयर दे अगेन स्टार्ट बिल्डिंग शॉर्ट, दे अगेन स्टार्ट बिल्डिंग लॉन्ग,
एंड वो स्टॉक का ट्रेंड ऊपर में चालू हो जाता है, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। ओके, तो वो जब शॉर्ट बिल्टअप जब हो जाएगा, मतलब वो शॉर्ट कवरिंग रैली जब आएगी, तो वो ना ही शॉर्ट कवरिंग रैली बट लॉन्ग बिल्टअप के साथ भी अकम्पनी होगा, तो आपको एक अच्छा खासा अपमूव खेलने मिलेगा। बट दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो टेक्निक है ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में चलेगा। ओके, ये थोड़ा पोजिशनली चलता है। एंड मैं आपको एग्जांपल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हाउ लॉन्ग डज दिस फेज इज लास्ट। एंड अगर आप सपोज कैश ट्रेडर भी हो, तो इट इज ओके। आई मीन, आप एफएनओ में ट्रेड नहीं करते हो, देन ऑल्सो इट इज फाइन। आप खाली ये ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करके आप एक्चुअली में ये स्टॉक पोजिशनली भी ले सकते हो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। ओके, तो वी विल कम टू दैट पार्ट इन जस्ट अ बिट, ठीक है? बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ये फोर फेज ऑफ द स्टॉक, ठीक है? पहला है लॉन्ग बिल्टअप। लॉन्ग बिल्टअप में ओपन इंटरेस्ट हाई हो जाता है, तो वहां से ओपन इंटरेस्ट घटना ही पड़ता है बिकॉज वो एक लेवल हिट कर चुका है, एंड वो चीज लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रिगर करती है, राइट? और लॉन्ग अनवाइंडिंग करते करते स्टॉक नीचे जाता है और वो प्रॉबेबली एक टेक्निकल लेवल ब्रेक कर देता है, जिससे कि जो ट्रेंड फॉलोअर्स रहते हैं वो शॉर्ट करना चालू करते हैं, जिससे कि वापस ओपन इंटरेस्ट हाई हो जाता है। ओके, एंड वो ओपन इंटरेस्ट हाई होने के बाद वो एक लेवल पे इतना पहुंच जाता है कि वहां से और ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ सकता है, जिसके वजह से इवेंचुअली शॉर्ट कवरिंग रैली होती है, और ये फेजेस चलते रहते हैं मार्केट में, ठीक है? सो बट जस्ट टू रीआइटरेट वंस अगेन, शॉर्ट बिल्टअप जहां पे भी ज्यादा होता है एंड वो स्टॉक मीडियम टर्म में एक अप ट्रेंड में है, ठीक है? मीडियम टर्म में, मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, मीडियम टर्म में अप ट्रेंड में है, बट वो बिकॉज वो शॉर्ट टर्म करेक्शन आनी है, तो उसमें ये शॉर्ट बिल्टअप बन गए हैं। तो जब वो मीडियम टर्म ट्रेंड अप रहता है, तब वो एक बहुत मैसिव रैली ट्रिगर करता है। एंड इसके मैं आपको इसके मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स भी बताऊंगा। नाउ थर्ड थिंग जो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओपन इंटरेस्ट में हमेशा आपको दो सिनेरियोज मिलेंगे। या तो ओपन इंटरेस्ट आपको हाई मिलेगा, अगर मीडियम, अगर ओपन इंटरेस्ट कोई भी एक्सट्रीम पे नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। बट जब भी ओपन इंटरेस्ट एकदम हाई या एकदम लो रहता है, दोज आर योर वॉचिंग आउट पॉइंट्स के, मतलब वहां पर आपको ये फाइंड आउट करना है कि अगर वो ओपन इंटरेस्ट हाई है तो क्या वो स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और प्रीवेलिंग ट्रेंड ही कंटिन्यू होगा, या ये ओपन इंटरेस्ट इतना हाई हो चुका है कि यहाँ से अब कवरिंग आनी है, ठीक है? आपको ये चीज ही आइडेंटिफाई करना है, विच मीन्स कि अगर ओपन इंटरेस्ट हाई है तो वेदर इट इज सिग्नलिंग कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके, एंड अगर ओपन इंटरेस्ट लो है, ओके, तो वो आपको यही सिंपल बताता है कि अभी लोग इस पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड या तो पॉसिबली इसमें कुछ ट्रिगर नहीं है, दैट्स वाई द पोजिशनिंग बहुत लाइट है ये स्टॉक में। जब लो ओपन इंटरेस्ट से वापस कोई भी डायरेक्शन में बिल्ड होना चालू होता है ओपन इंटरेस्ट, ओके, दैट कैन बी अ पोजिशनल ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड थोड़े दिनों या कुछ हफ्तों के लिए वो प्रिवेल हो सकता है। तो इसीलिए ओपन इंटरेस्ट लो होना भी, ओपन इंटरेस्ट जब लो हो तब ये भी देखना इंपॉर्टेंट है कि वो सारे स्टॉक जिसमें लो ओपन इंटरेस्ट है किस साइड में पोजीशन बिल्ड हो रही है, ठीक है? इसके भी मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ये रोल ओवर का डेटा देख रहा था ये एक्सपायरी एंड पे, तो काफी सारे मेरे को इंटरेस्टिंग सेटअप मिल रहे थे, तो विच अगेन हम डिस्कस करेंगे इन जस्ट अ वाइल एज वी कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन। तो अब जब आप ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो कि लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, शॉर्ट बिल्टअप क्या होता है, लॉन्ग बिल्टअप क्या होता है, फिर फेजेस क्या होते हैं, और अगर ओपन इंटरेस्ट एकदम हाई या लो है इसका मतलब क्या है, ठीक है? अगर आपने ये तीनों चीज आप समझ गए हो, तो देन लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। ओके, तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स जो मैंने बना के रखे हैं, जो पहले के ऑब्जर्वेशंस है, पर हम इसमें करंट एक्सपायरी के भी हम एग्जांपल्स जानेंगे। बट आपको ये खाली सिनेरियो समझने हैं कि कैसे प्ले आउट होते हैं। अभी आप जैसे कि ये स्टॉक देख सकते हो यूपीएल,
ठीक है। तो यूपीएल में आप देख सकते हो कि आई थिंक इन द मिडल ऑफ 2024, ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक में ब्रेकडाउन आया, जो मार्क्ड है वो स्क्वायर में, ठीक है। और आप देख सकते हो कि ये ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स का ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ओपन इंटरेस्ट हाई है और वो अगर स्पेशली ओपन इंटरेस्ट ब्रेकआउट दे रहा है, तो इज इट अकम्पनीड बाय सपोर्ट लेवल्स भी टूट रहे हैं कि नहीं, आपको वो जानना है। अगर सपोर्ट लेवल टूट रहे हैं तो ये शॉर्ट बिल्टअप बना है, ठीक है, बट ये अभी भी शॉर्ट बिल्टअप में देर इज अ लॉन्ग वे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ओके, बिकॉज अभी अभी मेजर सपोर्ट लेवल टूटा है, एंड व्हेन मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक्स तो काफी हफ्तों तक वो ट्रेंड कंटिन्यू होते रहेगा, राइट। तो दैट इज वेयर यू कैन सी कि वो जो मिडिल ऑफ 2024 में जो भी ब्रेकडाउन आया, उसके बाद वो स्टॉक ऑलमोस्ट आई थिंक 650 के लेवल से ऑलमोस्ट 450 के लेवल पे आ गया था, बिकॉज वहां पे जब हम 20 वीक प्लॉट करें तो वो 20 वीक वो ब्रेक ही नहीं कर रहा था, और हर बार पुल बैक्स में वहां पे थोड़े शॉर्ट कवरिंग आते थे, जिसकी वजह से आप वो ओपन इंटरेस्ट को बीच बीच में थोड़ा डिप होते हुए देखोगे, बट वंस अगेन वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू कर देता था, एंड दैट्स वेयर दैट वाज एन इंडिकेशन के शॉर्ट बढ़ गए हैं। अभी तो हालांकि अगर आप देखो तो स्टॉक प्राइस 450 से लेके 600 आ गया, बिकॉज इसमें बहुत सारा इवेंचुअली शॉर्ट बिल्टअप हो गया था, एंड देन वो शॉर्ट सारे कवर भी हुए। बट या दिस इज वन सिनेरियो जहां पे ओपन इंटरेस्ट हाई है बट सपोर्ट लेवल्स में ब्रेकडाउन है, सो दिस एक्चुअली इंडिकेट्स अ ट्रेंड कंटिन्यूएशन सिनेरियो, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई हो गया तो यहाँ से कम होना चालू होगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपको प्राइस एक्शन को भी उतना ही वेटेज देना है जितना आप ओपन इंटरेस्ट को दे रहे हो, ओके। दूसरा सिनेरियो ये है कि जब प्राइसेस, अभी सपोज कोई स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है, ठीक है, जैसे कि आप ये स्टॉक में देख सकते हो कि ये स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप है और प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट हायर है, एंड जो भी लॉन्ग जिसने होल्ड किया है स्टॉक को, दे आर होल्डिंग आउट द स्टॉक। बट अभी आप देख सकते हो कि ये ओबरॉय रियलिटी में एक दूसरा जब पीक बना था, सेकेंड पीक विच इज द हाइएस्ट हाई, वहां पर आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गया था। नाउ ओपन इंटरेस्ट सब्सटैंशियली रिड्यूस हो गया था मतलब लोगों ने अपने पोजीशन खाली किए हैं, ठीक है। जब भी ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है और एकदम कम हो जाता है, तब मैंने आपको बताया था कि नाउ पीपल आर न्यूट्रल ऑन दिस स्टॉक, ओके। जब न्यूट्रल है स्टॉक में, तो जब स्टॉक में लोग न्यूट्रल है, तो वहां से किस डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ने वाला है वो ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ओके। बट नॉर्मली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जो स्टॉक्स अप ट्रेंड में है, ठीक है, वहां पे हमेशा क्या होता है कि ओपन इंटरेस्ट कम होगा, ओके, और वापस जब वो अप मूव चालू होगा तब वो वही डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चालू हो जाएगा, विच मीन्स के प्राइसेस ऊपर जाएगा और ओपन इंटरेस्ट भी वापस बढ़ना चालू होगा। तो व्हाट वी एक्चुअली गेट इज के लॉन्ग बिल्टअप होता है, एक एक्सट्रीम आता है, उधर से लॉन्ग अनवाइंडिंग होता है, जिसकी वजह से माइनर डिग्री करेक्शन आता है। वो माइनर डिग्री करेक्शन वीक हैंड्स को आउट कर देता है, और फिर वापस वो जब अपना अप ट्रेंड चालू करता है तब वापस ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है, ओके। ये टिपिकली हम एक क्लासिक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में देखते हैं, ओके। बट ये वाले केस में जैसे आप देख सकते हो कि एक नया हाई बनाया, ओके, बट नया हाई के बाद वापस ही अप ट्रेंड चालू नहीं हुआ, ठीक है। इनफैक्ट इस टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो कि कवरिंग आई मीन इनफैक्ट शॉर्ट्स बिल्टअप होने चालू हो गए, एंड दैट्स व्हाट ट्रिगर्ड द प्राइस टू करेक्ट। तो आपको हमेशा वो जब वो नीचे आना चालू होगा स्टॉक प्राइसेस, तब आपको दिखेगा कि ओपन इंटरेस्ट अब शॉर्ट के टूवर्ड्स बिल्ड होना चालू हुआ है, एंड यू विल सी एंड यू विल एक्चुअली सी के प्राइजेस घट रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और ये कॉन्जिक्यूटिव 2 3 4 डेज होता है, एंड देन दैट इज अ वार्निंग साइन कि यहाँ पर से स्टॉक में करेक्शन आ सकता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बट जैसा मैंने कहा आपको कि प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड जस्ट टू लेट यू नो, राम, यू हैव मेंशन्ड के ओबरॉय रियलिटी का ओआई लो है और प्राइस लो है, तो मैं एकदम लास्ट के चार्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस चार्ट का बात कर रहा हूँ जहां पे मार्किंग्स हुआ है,
आप देख सकते हो कि स्टॉक ने हायर हाई किया है बट ओपन इंटरेस्ट घटते गया है डिस्पाइट प्राइसेस मूविंग हायर। तो दिस इज अ डाइवर्जेंस साइन एंड आपको केयरफुल रहना है। द नेक्स्ट सिनेरियो इज कि जैसे आप ये लूपिन में देख सकते हो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द चार्ट अप्रैल के टाइम में, जब आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट एकदम घट गया, ओके, और वो एक बहुत लोअर लेवल्स पे आ गया था व्हेन यू कंपेयर इट टू द पास्ट, मतलब वो लास्ट 3-4 साल के एकदम लोएस्ट पॉइंट पे आ गया था कोविड के डिक्लाइन में, राइट। एंड वहां से जब आपने देखा कि स्टॉक प्राइसेस बढ़ना चालू हुआ और ओपन इंटरेस्ट भी हायर हाई, आई मीन ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाना चालू हुआ, दैट इज एन इंडिकेशन कि कि प्राइसेस आर राइजिंग हायर क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है एंड दैट इज अ केस ऑफ अ लॉन्ग बिल्टअप। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपन इंटरेस्ट जब एकदम लो रहता है तब आपको ये चीज देखना है कि जिस भी डायरेक्शन में अब स्टॉक जा रहा है वो डायरेक्शन में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या आई मीन वो डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं। तो अगर मान लो कि प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ना चालू किया, मतलब वो लॉन्ग बिल्टअप है। अभी मान लो कि ओपन इंटरेस्ट एकदम लो है, ठीक है, और प्राइजेस फिर गिरने चालू हुए और ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चालू हुआ, मतलब वो स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप है, ठीक है। एंड जस्ट टू आंसर यज्ञेश क्वेश्चन, द आंसर इज यस। ये पूरा हम जो देखते हैं ये क्यूमुलेटिव ओआई है, ठीक है। तो जो भी आई मीन जो भी हमने हमें ज्वाइन किए जिन्हें क्यूमुलेटिव ओआई नहीं पता, क्यूमुलेटिव ओआई मतलब हम करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ तीनों का ओपन इंटरेस्ट हम जब एडिशन करके देखते हैं तो हमें क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मिलता है। मुझे हमेशा आदत है कि क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट देखने का, क्योंकि आपको पूरे ही तीनों सीरीज का आपको डेटा पता चलता है एंड इसमें जो भी हेजेस वेजेस है वो सब कुछ फैक्टर इन हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कोई लोग कैंडल स्प्रेड करेंगे एंड सो ऑन। तो अगर आप एक ही एक्सपायरी का देखोगे तो आपको शायद ट्रू पिक्चर नहीं मिलेगा, बट व्हेन जब आप क्यूमुलेटिव देखते हो तब आपको ये ट्रू पिक्चर आपको देखने मिलेगा। एंड दिलीप, आपका ये क्वेश्चन है कि हाउ डू वी ट्रैक ओआई फॉर मल्टीपल ईयर्स एज मेंशन्ड। तो ये चीज एक्चुअली हमने स्ट्राइक पे बिल्ड की है, सो जस्ट टू शो यू द प्लेटफॉर्म। सो ये जो स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम फ्यूचर्स में जाके ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं, तो मान लो हम कोई भी ऐसा स्टॉक देखते हैं जो जिसका पुराना डेटा हो, जैसे मान लो ओएनजीसी, तो ईयर हमने पूरा ही 12 साल का डेटा इसमें डाला हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के ये अपने हिस्टोरिकल अपने अपने हिस्ट्री से वो ओपन इंटरेस्ट में कैसा है, इज इट एट द हाईएस्ट लेवल और या बड़े बड़े लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो ये आपको एक अच्छा व्यू देगा व्हेन यू लुक एट द ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम 12 years perspective. So yes, so coming back to now the presentation, um, तो ये जो मैंने आपको बताया ये थर्ड सिनेरियो है जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एकदम घट गया है, बट घटने के बाद प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। सो दिस इज एन इंडिकेशन दैट इट इज अ लॉन्ग बिल्टअप एंड लूपिन एक्चुअली आफ्टर कोविड वो ऑलमोस्ट 550 या 600 के लेवल से वो ऑलमोस्ट डबल हो गया था, राइट। नेक्स्ट इज द सिनेरियो ऑफ अ केस वेयर ओपन इंटरेस्ट लो हो गया है, ठीक है, बट जब वो प्राइजेस आई मीन जब वो ओपन इंटरेस्ट लो हो गया और प्राइजेस ने ब्रेक डाउन दिया एंड प्राइजेस ब्रेक डाउन देके आप देख सकते हो कि वो एरो नीचे है और ओपन इंटरेस्ट का एरो अप है, दैट मींस देयर वाज अ बिग शॉर्ट बिल्टअप दैट हैज हैपेंड इन दिस स्टॉक और वो स्टॉक को शॉर्ट बिल्टअप ने ही नीचे लाया, ओके। एंड ये शॉर्ट बिल्टअप अगर आप देखो, मैं आपको ये एक्चुअल लाइव एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि ये मैंने इसमें इन्फोसिस डाला था। तो इन्फोसिस में क्या हुआ था कि ये पॉइंट पे, ओके, एट दिस पॉइंट द ओपन इंटरेस्ट बिकेम वेरी लो, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे जब ये इधर हाई पे था एंड यहाँ पर ये गैप एरिया था, ठीक है। तो यहाँ पर से जब ये प्राइसेस के ब्रेकडाउन हो गए, अभी आप जो भी ट्रेंड एनालिसिस करते हो यू कैन डू मेनी डिफरेंट वेज कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो गया, एवरेजेस ब्रेक हो गया, या ये लोअर हाई लोअर लो बनाया, या इधर आप
देखोगे तो ये छोटे डिग्री पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना दिया था। ओके, तो ये सारे ब्रेकडाउन पॉइंट्स यू कैन डू योर वे। ओके, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट कि तुम्हारा ट्रेंड एनालिसिस क्या है, बट नॉर्मली व्हाट वी डू इज कि हम ट्रेंड चैनल्स, एवरेजेस और ये अगर पैटर्न्स दिखते हैं तो दैट इज व्हाट वी फॉलो, एंड देन you can see that Infosys declined, so almost 1700 से वो 1400 आ गया था, एंड ये टाइम पे ओपन इंटरेस्ट एक एक्सट्रीम पे पहुंच गया था। और जब आप उसका हिस्टोरिकल चार्ट देखो तो आप देखोगे कि ये जो फेज है, ठीक है, ये इसके यहाँ पे पीक्स बने हैं पहले ओपन इंटरेस्ट के, एंड ये टाइम भी आपने देखा कि यहाँ पर ये पीक्स बन गए थे, एंड बिकॉज ये सारे शॉर्ट बिल्टअप थे, ठीक है, एंड इवेंचुअली ये एक एक्सट्रीम पे रीच किया विच वाज लाइक अ 3-4 ईयर रेंज। सो इवेंचुअली व्हाट ट्रिगर्ड वाज अ शॉर्ट कवरिंग, एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये जो सारे जिसने शॉर्ट किए अभी तक भी ओपन इंटरेस्ट रिलेटिवली हाई है, ठीक है, विच मीन्स शायद इसमें अब तक शॉर्ट्स पूरी तरह से कवर नहीं हुए, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज योर प्राइस ट्रेंड टेल्स यू के ये बुलिश ट्रेंड प्रिवेल होने वाला है, तो तब तक देर विल बी द स्कोप कि ये ओपन इंटरेस्ट और भी घट के नीचे आ सकता है, एंड दैट कैन ट्रिगर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो भी मूव्स आते हैं दीज आर मोर पोजिशनल, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि शॉर्ट बिल्टअप एक दिन हुआ दूसरे दिन शॉर्ट कवरिंग होगा, और ऐसे नहीं हमें देखना चाहिए। आइडियली हमें थोड़ा पोजिशनली देखना चाहिए कि 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते में क्या हो रहा है, बिकॉज ये सारे जो ट्रेंड्स है ये थोड़े मीडियम टर्म ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जब भी अभी जैसे आप देख सकते हो कि ये इन्फोसिस भी डिक्लाइन हुआ, तो ये फेब से लेके अप्रैल मतलब 2-3 महीने तक ये ट्रेंड प्रिवेल हुआ, एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि जून से लेके जुलाई तक ये पूरा शॉर्ट कवरिंग रैली आया, और इनफैक्ट जब भी इसमें थोड़ा बहुत पुल बैक भी आया, तो आपको वो एक माइन्यूटली सारे डेटा देखने और वही आपको देखने के लिए अगर आपको डे ऑन डे डेटा इसका कैसा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आप ये बटन पे क्लिक करोगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन डे ऑन डे भी आ जाएगा कि ये स्टॉक में एक्चुअली अभी सपोज जैसे कि 29 से 5 अगस्त था, सो 29, सो ये फेज में क्या हो रहा है, तो आप ज्यादा करके देखोगे तो इतना ज्यादा कुछ बिल्टअप नहीं हुआ था, खाली ये लास्ट 2-3 कैंडल पे बिल्टअप हुआ था, एंड दैट अगेन स्टार्टेड सीइंग अ शॉर्ट कवरिंग मूव, बिकॉज वो इन्फोसिस उतना ही जोर से वापस ऊपर आ गया था। बट लाइक आई मेंशन कि अगर आपको दिख जाता है कि पोजिशनली ये एक अच्छे खासे शॉर्ट कवरिंग मूव में आना चालू हो रहा है, देन दिस ट्रेंड विल प्रिवेल फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ पीपल में आस्क के ये ट्रेंड कितना टाइम प्रिवेल हो सकता है, तो ऑनेस्टली इट डिपेंड्स अपॉन के वो स्टॉक कितने टाइम से करेक्शन में है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ स्टॉक लाइक सन फार्मा एंड सो ऑन, जब वो अपने डिक्लाइनिंग फेज में था इन 2000 एंड आई थिंक 15 से लेके 20 तक, ये 5 साल का बड़ा करेक्शन था, और आप देख सकते हो कि ये ओपन इंटरेस्ट एक बहुत मैसिव लेवल पे आ गया था। ओके, जो पहले जिसका 7 मिलियन या ऐसा रहता था वो ऑलमोस्ट 10x हो गया था उसका ओपन इंटरेस्ट, एंड वहां से आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट वो स्टॉक कितना 300 से लेके ऑलमोस्ट 1800 हो गया, and then you can see that open interest is just declining, right? तो अभी ऐसे आप बोल सकते हो कि ये स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट एकदम कम है, बट आप देख सकते हो कि हर बार एक थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, ठीक है। तो इसमें अभी भी स्केप्टिसिज्म होता है, इसलिए हर बार वो करेक्शन में आता है और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ता है, देन अगेन द नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव इज फ्यूल्ड बाय द शॉर्ट कवरिंग रैली एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो हमेशा जैसे कि मैंने पहले के वेबिनार्स में भी बताया, यू हैव टू फाइंड आउट कि मीडियम टर्म ट्रेंड इसका क्या है। अगर आप मीडियम टर्म ट्रेंड आप समझ जाते हो, तो हमेशा क्या होता है शॉर्ट कवरिंग में यूजुअली पैनिक में ना लास्ट 2-3 कैंडल पे ही लोग मैक्सिमम शॉर्ट करते हैं, क्योंकि उसमें शायद कुछ न्यूज आता है या कुछ आता है, एंड देन इवेंचुअली दे गो फॉर कवरिंग, और वो जब कवरिंग आता है तब एक बहुत अच्छा अपमूव आपको देखने मिलता है, ठीक है। सो ब्रॉडली ये सिनेरियोस थे जिसके जो जो टिपिकली मैंने देखा है फॉर्म होते हुए। अब हमें अब लेट अस गो टू के ये करंट रोल ओवर में, ठीक है, कैसे हुआ है। तो जस्ट
फॉर द पीपल जिसको ये स्क्रीन नहीं समझता है, तो ये एक यूनिक स्क्रीन है जहाँ पे आपको सब जगह एक्चुअली ये तो दिख जाता रहेगा कि इसका रोल ओवर परसेंटेज कितना है, इसका एवरेज कितना था एंड सो ऑन, बट दीज आर ऑल परसेंटेज बेसिस, ठीक है। मैंने एक्चुअली ये फाइंड आउट किया है कि ये परसेंटेज अगर सपोज वो रिलेटिवली एकदम लो बेस से चालू होगा तो आपको लगेगा कि ये परसेंटेज एकदम हाई है, एंड आई डोंट नो, मतलब आई जस्ट फाइंड कि ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, जबकि आपको एक्चुअली में रियल ओपन इंटरेस्ट देखना चाहिए कि हाउ आर पीपल पोजिशन। ओके, तो इसके वजह से हमने ये स्क्रीन बनाया था। तो ये केस में हम जो कैप्चर करते हैं फर्स्टली इस कंबाइंड ओआई, तो आपको ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, कि आपको कंबाइंड ओआई देखना है या नहीं देखना है, मतलब यू कैन अनटिक इट। तो मैं हमेशा कंबाइंड ओआई देखना प्रेफर करता हूँ। तो ये क्या करता है कि मान लो कि अगर सो एक्सपायरी अगस्त की एक्सपायरी 29 को थी, करेक्ट। तो ये जब ये 29 का ईओडी पे एक्सपायरी खत्म होगा तब भी ही ये पेज अपलोड होगा। तो हर बार ये जो पेज है ये खाली एक्सपायरी टू एक्सपायरी अपलोड होता है। तो आप 29 के दिन पे ना आप सितंबर कॉलम देखोगे कि हाउ आर पीपल पोजिशन्ड फॉर द कमिंग एक्सपायरी। तो इसलिए आप देख सकते हो कि ये जो है, ये जो सारे फिगर्स है, दीज आर ओपन इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू एक्सपायरी, ठीक है। तो ये आपको ट्रेंड बताता है कि स्टॉक में लोग कैसे पोजिशन्ड है, ठीक है। एंड हमने थोड़े बहुत इधर एनालिसिस भी दिए हैं फॉर यू टू फिल्टर आउट द स्टॉक। तो मान लो कि आप ये देख सकते हो, जैसे जीएमआर इंफ्रा है तो इसका 63% ओआई चेंज है एंड मंथ ऑन मंथ प्राइस चेंज ये है। तो ब्रॉडर व्यू इससे ये समझ में आता है कि लोग इसमें लॉन्ग है एंड शायद उन्होंने कैरी किया है। अभी आपको यही चीज आपको थोड़ा ग्रैन्युअल इंफॉर्मेशन देखना है। तो आप तो पहले तो एक और यूनिक चीज हमने क्या की है कि ये जो चार्ट है जो आप देख रहे हो, ठीक है, तो दिस इज ऑल एक्सपायरी टू एक्सपायरी चार्ट। तो ये आपका जो नॉइज है बीच का वो कट कर देता है, ठीक है। तो जैसे आप ये देखोगे कि ये प्राइस दिसंबर वाले मंथ की एक्सपायरी क्या है, फिर द नेक्स्ट रेट दैट यू विल सी वो जैन मंथ की एक्सपायरी का है एंड सो ऑन। तो हमने खाली एक्सपायरी टू एक्सपायरी का इधर यहाँ पे चार्ट बना दिया है। एंड यहाँ पे जो नीचे आप जो रोल ओवर देख रहे हो, मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ये स्टार्ट ऑफ न्यू एक्सपायरी का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि वापस अभी आप ये थोड़ा चार्ट जूम आउट करके देखोगे तो जीएमआर अपने प्रीवियस हाई पे आ चुका है, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि अभी ये ओपन इंटरेस्ट एक एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है, ठीक है। तो क्या लोग इसमें शॉर्ट है या लॉन्ग है? अगर लॉन्ग है तो शायद इसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा, अगर शॉर्ट है तो शॉर्ट कवरिंग होगा। तो अगर आपको यही जानना है और आपको ये ग्रैन्युअल डिटेल करना है, ग्रैन्युलर डिटेल देखना है, तो इसी पे आप क्लिक करोगे और इस पे आपको ओपन इंटरेस्ट का एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा और आपको ये पता चलेगा वेदर द स्टॉक हैज बीन इन अ लॉन्ग बिल्टअप और अ शॉर्ट बिल्टअप, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट है, ये लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट था इन द लास्ट से फ्यू मंथ्स, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, एक्चुअली में आप देखोगे तो ये ब्लेंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट है। मतलब जब ये गिरा है तभी भी ओपन इंटरेस्ट थोड़ा बड़ा है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, ये कुछ फॉल में थोड़ा ओपन इंटरेस्ट बड़ा है एंड देन ये पैच में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, ठीक है। तो अब हम जब पैटर्न वाइज देखते हैं तो दिस लुक्स मोर लाइक अ ट्रायंगुलर पैटर्न, करेक्ट। तो ये अगर ट्रायंगुलर पैटर्न है तो हमें हमें ये जज करना है कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न किस साइड ब्रेक होगा एंड इसका ट्रेंड क्या होगा। तो उसके लिए हम द टिपिकल सेटअप दैट वी फॉलो इज एक्चुअली रोहित मोमेंटम। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एवरेजेस के बीच में है, बैंड्स एकदम टाइट हो रहे हैं। तो राइट नाउ ये इंडिकेशन कुछ दे नहीं रहा है ट्रेंड का, बट प्रोबेबली जब ये कोई भी साइड पे ट्रायंगल पे ब्रेकआउट होगा, ओके, एंड इसका ओपन इंटरेस्ट जिस भी साइड पे रहेगा और वो बढ़ना या घटना चालू होगा। सो मान लो कि अगर ऐसा कुछ होता है कि ये ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, ये यहाँ से कवर होना चालू हुआ एंड प्राइसेस ऊपर होना चालू है, तो प्रोबेबली जो शॉर्ट्स जो ये फेज में हुए हैं दे आर स्टार्टिंग टू कवर एंड दैट इज व्हाई
you can end up seeing a good short covering rally, but जैसे कि मैंने कहा it can go either way. So अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करके वापस ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, so that means the ones जिसने बीच में लॉन्ग भी किया है, ओके, सो अराउंड दिस फेज और मे बी अराउंड दिस फेज, तो उन लोग शायद कवरिंग के लिए जा सकते हैं, एंड दैट में एंड अप ट्रिगरिंग a negative price effect, which means के prices नीचे जाएंगे, and open interest भी नीचे जा सकता है, because the people who were holding long, they are probably moving out. तो this was just an example, मतलब ये जो ऑब्जर्व किया, बट व्हेन आई वाज सीइंग द स्टॉक्स, ओके, आई फाउंड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, एंड मेनली मेरे को एक्चुअली में स्टॉक जो इंटरेस्टिंग लगे वो सारे जिसमें कवरिंग हो गया था, आई मीन जिसमें बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट घट गया था, दोज वेर द प्लेसेस जहां पे मेरे को एक्चुअली में स्टॉक का सेटअप्स अच्छे लग रहे थे, जैसे कि वन ऑफ देम वाज से इंडिया मार्ट. तो अभी बिकॉज मुझे ये स्क्रीन डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैंने एक्चुअली क्या किया, मैंने इसी पे जाके एक डुप्लीकेट स्क्रीन बना दिया, ओके, एंड ये डुप्लीकेट स्क्रीन में जाके मैं एक्चुअली में ओआई इंटरप्रिटेशन में जा रहा हूँ टू सी ऑल द ग्रैन्युलर डेटा, ठीक है. तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ कि ये रोल ओवर में मैंने देखा कि इंडिया मार्ट एक है, ये मुझे एक सेटअप इंटरेस्टिंग लग रहा है, ठीक है. तो इंडिया मार्ट, इसको आपने ऊपर टाइप किया, एंड व्हाट यू कैन सी ओवर हियर इज दैट कि इंडिया मार्ट में ये एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट एक उसके अभी इसका हिस्ट्री तो काफी छोटा है, बट देन टू व्हाट हैज हैपेंड इज कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एक बहुत हाई लेवल पे आ गया था, राइट, एज यू कैन सी ओवर हियर. एंड बेसिकली इसमें हुआ ये था कि ये जो स्टॉक में जब अपमूव आया था, ओके, तो देयर वर सम पीपल हु हैड टेकन लॉन्ग पोजीशन ओवर हियर, एंड देन ये जो डिक्लाइन था यहाँ पे पहले दो कैंडल पे लोगों ने काफी शॉर्ट किया था, और वो इवेंचुअली यहाँ पे कवर किए, एंड दैट इज व्हाई वी सॉ ओपन इंटरेस्ट गोइंग डाउन. बट स्टिल अगर आप इसके हिस्टोरिकल टर्म्स से देखो तो शायद ओपन इंटरेस्ट अभी भी थोड़ा हाई है, ठीक है. एंड जब मैं ये स्टॉक का जब मैं चार्ट देख रहा था, ओके, टेक्निकली, तो मैं इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में देखने का ट्राई कर रहा था. तो मैं देख रहा था कि अगर मैं डेली चार्ट पे जाऊं तो ये एवरेजेस के ऊपर है. इसमें अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊं तो ये वीकली एवरेजेस का सपोर्ट लेके ऊपर आया है, एंड यू कैन सी दैट द मोमेंटम इज आल्सो इन बाय. द इंटरेस्टिंग पार्ट वाज ऑन द मंथली चार्ट. सो जब मैं इसका मंथली चार्ट देखा तो मंथली चार्ट में एक्चुअली हो रहा ये है कि ये स्टॉक में जो बॉलिंजर बैंड है ये भी एकदम कंप्रेस हो गया है ऑन द मंथली चार्ट. यहाँ पे आरएमआई ने भी एक अच्छा साइकिल कंप्लीट किया है, एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू give a bullish crossover. तो मुझे ऐसे लगता है कि मे बी आई मीन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड दैट इज प्रोबेबली टर्निंग अराउंड, क्योंकि अगर आप ये स्टॉक का प्राइस देखो, आई मीन ये स्टॉक का आप चार्ट देखो, तो इसने काफी बड़ा करेक्शन देखा था फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम 5000 levels to almost 1800 levels, and now it is somewhat trying to make a comeback. So technically, obviously, if it goes above this high, which is 3335, then it will become a very interesting setup, because इसका monthly setup is very good. So like I mentioned, ये जो मैं रोल ओवर एनालिसिस ये सारे जब मैं देखता हूँ, ये मैं ज़्यादा करके थोड़ा मीडियम टर्म व्यू से देखता हूँ, बिकॉज मुझे एक अच्छे, जो मैंने आपको बताया कि वो जो शॉर्ट कवरिंग से लेके लॉन्ग अनवाइंडिंग का फेज एंड सो ऑन, तो दैट बिकम्स वेरी एविडेंट, बिकॉज इसमें होगा ये कि ये शॉर्ट बिल्टअप फेज में था, तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग होगा, एंड शॉर्ट कवरिंग में वो कोई लेवल्स ब्रेक करेगा जिधर से इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग लॉन्ग पोजीशंस, ओके. तो दैट इज व्हाई as I mentioned start maybe कि you have to try to find these stocks, because this is where you get maximum move on the upside, because एक तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली ही पहली बार तो बहुत बड़ा रैली ट्रिगर करता है, एंड जब वो अपमूव चालू हो जाता है देन पीपल रियलाइज कि अच्छा ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अच्छा हो रहा है, एंड दे स्टार्ट गेटिंग इन दैट स्टॉक, एंड दैट गिव्स यू अ सब्सटैंशियल मूव ऑन द अपसाइड. जब मैं अभी इसके जब मैं दूसरे स्टॉक्स में देख रहा था, तो वन ऑफ देम विच आई रियली लाइक्ड वाज इवन एमजीएल.
एमजीएल में अगर आप देखो एमजीएल का चार्ट पैटर्न, तो अगेन दिस इज जस्ट टू क्लैरिफाई के we are not giving any recommendations. Okay, this is just based on the rollover studies and the chart setups, where we find some setups interesting, and the motive behind this is to not to provoke you to buy or sell, but to understand the concept and how do we think about it. Okay, so that is the main motto. सो इफ यू सी अ स्टॉक लाइक एमजीएल, तो यहाँ पर भी क्या हुआ था, जब भी कुछ तो एक न्यूज आ गया था इसमें, आई थिंक गैस रिलेटेड प्राइस कंट्रोल्स और सो ऑन। तो एक सेकंड, मुझे ये चार्ट बड़ा करने दीजिए। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक मल्टी ईयर रेंज था, ये ब्रेक हुआ था, ठीक है। एंड आप देखोगे कि सबसे बड़ा शॉर्ट एमजीएल में एक्चुअली में यही टाइम पे बन रहा था, जब ये इसका ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा मेजर बॉटम फॉर्म किया 2022 में। तो यहाँ पे इन दिस एंटायर डिक्लाइन द ओपन इंटरेस्ट वाज वेरी हाई, एंड इन फैक्ट व्हेन आई थिंक दिस डिक्लाइन हैपेंड, अगेन ओपन इंटरेस्ट सर्ज्ड वेरी हाई। बट टेक्निकली व्हाट यू वुड रियलाइज इज के यहाँ पर जो इसका जो बड़ा जो रेंज ब्रेकआउट था, ओके, इवेंचुअली दैट गॉट हेल्ड, एंड यहाँ पे ये जो शॉर्ट्स बने थे जिसने प्रोबेबली पैनिक में किए थे, वो इवेंचुअली शॉर्ट कवरिंग लेके बहुत अच्छे मूव आए, ठीक है। एंड जब मैंने आपको बोला कि ये मुझे स्टॉक इंटरेस्टिंग इसीलिए लगा बिकॉज यहाँ पे आई कुड सी दैट द ओपन इंटरेस्ट हैज रिड्यूस सब्सटेंशियली एंड देयर वाज सम गेन्स, ओके, विच वाज टेलिंग मी कि शायद यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग था। तो इसकी वजह से मैंने उसे और ज़्यादा ग्रैन्युलर डेटा जब मैं चेक करना चालू किया, तो मैंने यही नोटिस किया कि जब मैं चार्ट देखूं और इसका मैं डेली सेटअप देखूं, तो ये सेटअप मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज द प्राइजेस हैव गॉन फॉर अ कंसोलिडेशन, बैंड्स टाइट हो रहे हैं और ये 40 डे एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। एंड इसका जो ओपन इंटरेस्ट है, सॉरी, इसका जो आरएमआई है, ये पूरा कंसोलिडेट होके जीरो के यहाँ पे आ गया है। नाउ द एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि जब ये सॉर्ट ऑफ ऐसे मूव से ब्रेक होगा, ओके, फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन व्हेनेवर इट ब्रेक्स, तो मोस्ट लाइकली इसमें आरएमआई भी बुलिश होना चालू हो जाएगा, एंड दैट शुड प्रोबेबली ट्रिगर अ गुड अप मूव इन द डेज टू कम, एंड प्रोबेबली दैट्स वेयर ये जो ओपन इंटरेस्ट में अभी भी इट इज टेलिंग यू के ओपन इंटरेस्ट अभी भी हाई है, तो दैट you might end up seeing some more covering, and maybe you might even end up seeing the open interest going down as well. So this was again one stock that I found it interesting. The other one, like I mentioned, मेरे को सारे जो भी दिखे थे वो एक्चुअली में मुझे वो कवरिंग में ही दिखे। जैसे कि एक और स्टॉक था, और ये मैंने ट्रेंड एक्चुअली थोड़ा नोटिस किया कि आप एशियन पेंट देखो या फिर बर्जर पेंट देखो, ये सब में एशियन पेंट में भी जब ये डाउन जा रहा था, तब ये ओपन इंटरेस्ट अपने अगर हिस्टोरिकल लेवल से आप देखो, तो ये पहले कितना 4 मिलियन ऐसा कुछ ट्रेड होता था, एंड ये ऑलमोस्ट 18 मिलियन हो गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे ये पूरा साइडवेज हो गया। सो जस्ट एन ऑनेस्ट कन्फेशन, मुझे भी ऐसे लग रहा था कि ये स्टॉक में शायद ब्रेकडाउन आ जाएगा, बिकॉज जब मैं इसका मंथली चार्ट में देख रहा था, तो ये एक्चुअली में जो 40 मंथ एवरेज जो ब्रेक नहीं हो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि ये इस टाइम ब्रेक हो जाएगा एंड देन द स्टॉक में गो डाउन। बट रादर व्हाट हैज हैपेंड इज कि ये स्टॉक ने पूरा सेलिंग प्रेशर अब्सॉर्ब कर दिया, इट वेंट साइडवेज, एंड नाउ द मंथली मोमेंटम इंडिकेटर इज गिविंग अ बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। सो एंड इनफैक्ट जब आप इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखो फ्यूचर का, तो दिस इज स्टिल रिलेटिवली वेरी हाई। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये प्राइसेस अप होने चालू हो रहे हैं, इनफैक्ट जब इसका आप ट्रेंड एनालिसिस भी करो, तो डेली में इट इज ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस, वीकली में इट इज ट्रेडिंग अबाउट द एवरेजेस, monthly में it has come above the 20 month average, okay, and it is giving a bullish crossover। तो जब मैं इसका ट्रेंड एनालिसिस देखूं, तो this seems like a good setup, which is, I mean, जहां पर स्टॉक ये शायद कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होना चाहता है, ठीक है। तो इसको जब आप एक नॉर्मल ट्रेंड एनालिसिस भी अगर आप करेंगे, तो उसमें आप ये देखना
चाहेंगे कि whether the stock is breaking out from its consolidation or no, which is where it is right now. Okay, तो यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि जब ये अगर स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करना चालू किया, then the trend is likely to become very interesting, and I think the ones जिसने यहाँ पर शॉर्ट किया है, they might panic and they might go for a short covering, which can probably trigger a good up move in the days to come. Okay, so this is where I think one of the setups which was looking interesting. Then when I go to other stocks, जिसमें मुझे एक इंटरेस्टिंग सेटअप दिख रहा था, तो वन ऑफ देम वाज डॉक्टर रेड्डी. डॉक्टर रेड्डी में तो अगर आप देखो तो शायद इसमें तो एक्चुअली शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ था. ओके, आप ये देख सकते हो कि जब ये प्राइसेस यहाँ पर थे, तो ये प्राइसेस यहाँ से यहाँ गिरे, तब एक्चुअली में ये स्टॉक में शॉर्ट बिल्टअप बना था. एंड अभी भी आई थिंक कि ये जो शॉर्ट्स जो थे, ये बहुत ज़्यादा अनवाइंड नहीं हुए हैं, बिकॉज ये ओपन इंटरेस्ट तो यहाँ पर था. अभी ये जब फेस था मिडल ऑफ द अप मूव, जब ये प्राइस ने हाई ब्रेक कर दिया, तो तब जाके आपने ये देखा कि इसका ओपन इंटरेस्ट भी थोड़ा बहुत बढ़ना चालू हुआ. ओके, इनफैक्ट इन दिस फेस तो यहाँ पर अभी क्या है, एक्चुअली दिस इज अ ब्लेंड ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट. तो यहाँ पर लोग शॉर्ट है, यहाँ पे लोगों ने थोड़ा बहुत बाइंग किया है. अभी ये पूरा साइडवेज हो गया है एंड इट इज ट्राइंग टू मेक अ कमबैक. तो अगर इसका मैं चार्ट भी देखूं डॉक्टर रेड्डी का, तो इट इट इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि बैंड्स टाइट हो रहे हैं. ठीक है, ये आरएमआई भी ये पूरे कंसोलिडेशन में ऊपर से जाके जीरो तक आ चुका है, एंड नाउ इट इज trying to break out from this congestion. And if it tries to break out from this congestion, then I think there can be a good move that can be expected on the upside. And in fact, जो shorts जिन्होंने अभी भी cover नहीं किया है, they might go for a short covering move, and शायद वही एक अच्छा खासा up move trigger कर सकता है in the stock. Okay, now when I was seeing the stock, so there are few places जहाँ पे मुझे थोड़े concerns भी लग रहे थे. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी JSW स्टील, ऑनेस्टली इसका मीडियम टर्म चार्ट अच्छा है, बट द रीजन व्हाई आई एम अ लिटिल वरिड इज बिकॉज जब आप ओके सो जब आप इसका रोल ओवर डेटा देखें, जब आप इसका रोल ओवर डेटा देखेंगे तो इसमें ओपन इंटरेस्ट काफ़ी रिड्यूस हुआ. ठीक है, एंड ये थोड़ा अप मूव में था, बट ये थोड़ा अप मूव में था तो ये ऐसा लगेगा कि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुआ है, करेक्ट. बट जब मैं इसके अंदर जाके मैं डेटा देखता हूँ, तो एक्चुअली में क्या हुआ है कि इसका ओपन इंटरेस्ट बहुत लोएस्ट लेवल पे आ गया था, ऑलमोस्ट 2020 के लो पे आ गया था, करेक्ट. एंड ये टाइम पे भी देखो इसमें क्या होता था कि ये पूरा मूव शॉर्ट कवरिंग के वजह से आया. देन अगेन ये जो थोड़ा बहुत करेक्शन था, इसमें वापस लोगों ने शॉर्ट किया एंड देन अगेन ये अप मूव हुआ. एंड दिस इज व्हाट टिपिकली हैपेंस, बिकॉज अप मूव होते रहता है तो लोग बहुत स्केप्टिकल हो जाते हैं कि अरे ये स्टॉक और कितना बढ़ेगा, अभी इसे सेल करते हैं. तो इसमें करेक्शन आता है थोड़ा बहुत, बट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स होल्ड हो जाते हैं एंड देन इट अगेन स्टार्ट्स राइजिंग हाई. ओके, पर अभी इसमें क्या हुआ था कि जब ये ओपन इंटरेस्ट पूरा ही एकदम लोएस्ट लेवल पे आ गया था, विच वाज अ मल्टी ईयर लो, तो वहां पर आके जब ये जो पहला डिक्लाइन था, ठीक है, ये पहले डिक्लाइन में एक्चुअली में स्टॉक ने ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है. ओके, सो नाउ आई एम अ लिटिल स्केप्टिकल एंड वी नीड टू सी ऑब्वियसली कि व्हाट हैपेंस. इसका जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं इसका मीडियम टर्म चार्ट देख रहा था, सो दैट वाज लुकिंग वेरी गुड, बिकॉज वहां पे क्या हुआ कि ये करेक्शन में 40 तक आ गया एंड द साइकिल हैज आल्सो कंप्लीटेड. सो नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू सी इज के क्या ये आरएमआई घूम के इसे बुलिश क्रॉसओवर देता है, और क्या ये 61.8% ये डिक्लाइन का ब्रेक कर देता है. इफ यस, देन आई थिंक वो जो थोड़े बहुत शॉर्ट्स जो इधर बने हुए थे, दे माइट गो फॉर कवरिंग. बट माई फियर इज दैट कि अगर ये 61.8% ब्रेक नहीं हुआ, एंड हम एक्चुअली एलियट वेव में ये चीज़ देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो डिक्लाइन भी आया है, ये एक 5 वेव डिक्लाइन जैसा लग रहा है. तो हमें दिस इज वेयर आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड.
तो इसके लिए इसका ये जो 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है, दैट इज समथिंग दैट आई विल वॉच वेरी क्लोजली. तो आई थिंक वो लेवल आता है 1022 के वहां पे. तो आई थिंक अगर ये 1022 ये लेवल अगर ब्रेक होता है, एंड मीनवाइल अगर आरएमआई भी आपको बुलिश क्रॉस ओवर देता है, देन इट कैन आइडियली एंड अप बिकमिंग अ गुड सेटअप ऑन दी अप मूव. So this is where I'm confused, but ये स्टॉक ऐसा है कि that is worth tracking. Then there were few data, there were few stocks like say Cummins India, जहाँ पे आपने again देखा कि prices, I mean इसका open interest घटा and prices ऊपर आया, but again जब इसका मैंने granular detail किया and when I saw what is happening in the stock, so I realized कि यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट एक्चुअली काफी डाउन था, एंड ये स्टॉक में एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट बिल्टअप भी हुआ है. मतलब इफ यू सी दिस फेज, तो यहाँ पर ये शॉर्ट बिल्टअप हुआ है. ओके, एंड नाउ इट इज स्ट्रगलिंग अराउंड आई थिंक 61.8% रिट्रेसमेंट. Okay, it is struggling around the 61.8% retracement. So here the chart is looking very tricky. और ये जब मैं देख रहा था तो ये एक्चुअली मुझे अक्रॉस द सेक्टर ये ट्रेंड देखने मिल रहा था. जैसे कि अगर मैं इसका चार्ट देखूं, मैं डेली तो छोड़ दो, डेली में यहाँ पर सेल आया था, बट यहाँ पे मैं वीकली भी मैं देखूं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम से ये साइकिल इनकम्प्लीट है, और अब ये 20 वीक पे आ चुका है. ठीक है, तो अगर ये 20 वीक ब्रेक करता है, देन देयर इज अ चांस कि ये साइकिल कंप्लीट होगा. एंड कुछ कुछ स्टॉक्स में मैं देख रहा था, एंड वो सारे मेरे को नजर आए, जैसे मैंने आपको कहा कि वो कैपिटल गुड्स में ही मुझे ये सारे पैटर्न्स दिख रहे थे. जैसे कि अगर आप even if you look at something called as Siemens, यहाँ पर भी मुझे सेम चीज देखने मिल रही थी कि यहाँ पर ये जो ओपन इंटरेस्ट था, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग करके रखा है, एंड देन ये डिक्लाइन में लोगों ने और शॉर्ट भी किया. ओके, सो नाउ देयर इज दिस टग ऑफ वॉर दैट इज हैपनिंग बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट पीपल. सो लॉन्ग तो एक्चुअली काफी ज्यादा इन द मनी में है, बिकॉज लॉन्ग्स वर क्रिएटेड समवेयर ओवर ईयर, बट नाउ इवन द बेयर्स आर ट्राइंग टू मेक अ कम बैक. ओके, एंड आप अगर इसका इंटरनली आप इसका जब चार्ट देखोगे एंड उसका टेक्निकल सेटअप देखोगे, तो यहाँ पे एक्चुअली पहली बात तो डेली में आप देखोगे तो ये पुल बैक में इसने साइकिल कंप्लीट करके अब ये सेल देने आ रहा है. सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रेड फ्लैग. द सेकेंड वन दैट यू कैन सी इज दैट कि ये जो स्टॉक है ये भी यहाँ पर जो बुलिश क्रॉस ओवर दिया, फिर ये अपमूव देखना चालू किया, अपमूव देखा काफी, and then from here it has been in sell mode, and on Friday's trading session it has broken the 20-week average by a small margin. So then the fear becomes कि क्या ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, एंड अगर ये साइकिल कंप्लीट करेगा तो will it end up being a sideways consolidation, और ये 40 पे ड्रॉप करेगा. ओके, एंड 40 आर अगर आप देखो तो ये समवेयर ऑलमोस्ट अराउंड 6000 के लेवल्स के आसपास है. तो दिस इज वेयर अ बिट ऑफ अ कंसर्न इज. जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये मुझे ऑलमोस्ट हर एक कैपिटल गुड्स में देखने मिल रहा है ये पैटर्न. सो यू टेक इट BHEL हैज समवट सिमिलर पैटर्न, जहाँ पे ये एक्चुअली में निफ्टी हायर हाइज बना रहे हैं, बट ये स्टॉक इट इज रिलेटिवली लूजिंग मोमेंटम. यहाँ पे तो ओपन इंटरेस्ट काफी लो है, तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि क्या ये ओपन इंटरेस्ट ब्रेक होके ऊपर जाता है और क्या प्राइसेस नीचे जाते हैं. एंड व्हेन आप इसका मीडियम टर्म चार्ट सेटअप देखो तो दैट इज टर्निंग वीक एज वेल. तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी 20 वीक के नीचे ब्रेक कर दिया है. यहाँ पे शायद डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज बैंड्स कंप्रेस हो रहे हैं और इसका आरएमआई भी ऑलमोस्ट जीरो के यहाँ पे आ रहा है, बट इसमें एक ये रिस्क है कि ये शायद थोड़ा नीचे तक 270 या 260 तक थोड़ा करेक्शन देखे. सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि कैपिटल गुड्स में मेरे को दिख रहे थे, तो HAL वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम. सो HAL में तो यही हुआ है कि यहाँ पर बहुत सारे लॉन्ग्स थे, एंड इनफैक्ट ये डिक्लाइन में जो लॉन्ग्स थे वो थोड़े बहुत कवर हुए हैं,
okay, but it is still not covered to the extent जितना इसमें बना है. And when you see the daily and the weekly chart, तो डेली चार्ट में तो इसमें एक्चुअली आपको ये रिवर्स डाइवर्जेंस दिखेगा, जहां पर यू नो आरएमआई ने हायर हाई बनाया है, बट द स्टॉक हैज मेड लोअर हाई, एंड ये अपने एवरेजेस को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है. एंड जस्ट 2-3 days बैक इट हैज गिवन अ सेल सिग्नल. सो माई सेंस इज दैट कि अगर ये 40 hour ब्रेक नहीं करेगा ऑन दी अपसाइड, देन दिस इज एक्चुअली अ वीक स्टॉक. एंड यहाँ पे अगर आप देखो टेक्निकली तो काफ़ी ऐसा अच्छा सपोर्ट लेवल है. सो आई थिंक इफ दिस ब्रेक्स, then it will be a problem, and जो भी long जिन्होंने बनाया है, they can start unwinding. And in fact when you see the weekly chart, it has a very similar setup कि ये 20 week पे ही अब तक बच रहा था, but now I think it has given a close below the 20 week by a small margin. So in fact, yeah, 4760 was the 20 week, but it has closed around 4679 or so. And यहाँ पे again, the risk becomes कि क्या ये अपना cycle complete करेगा, and will it come back to 40 or below. So broadly, I think these were the observations that I had. Now, if you all have any questions, probably we can take it one by one. And yeah. So, Chavan, you're on mute. All right. Okay. So fantastic presentation, Jay. We'll start taking up the questions now. You can put it in the comment section, everyone, and we'll start taking. The first question is Gunjita Bhatta is asking, when you say medium term, does it mean 2 to 3 months, Jay? Yeah, I think you can say that, because ये जो भी trend रहते हैं, and especially the places where the short, I mean, see, the more the short built up and the bigger the downtrend is, the larger will be the short covering move eventually when it plays out. जैसे कि हमने सन फार्मा में देखा, सन फार्मा में consistently what was happening was that prices नीचे जा रहे थे and open interest बार बार ऊपर जा रहा था. So just if I can share the chart. So here when you see in the in the medium term, what was happening was that कि ये correction आता था, and whenever there used to be this minor degree pullback that used to happen, तो यहाँ पे open interest unwind होता था, and then again when the stock used to decline, the open interest used to reduce. Again in this up move it covered, and then again in this decline added short. So this sort of became that phenomena where where each time this open interest is going down, but once again when the prices are going down, the open interest starts picking up. So this was like a trend continuation types with a bout of pullbacks in between. Okay. And then eventually when this 5 year major decline ended, that's where this ended up becoming more like a long term sort of short covering that had happened. So as I mentioned, the larger the shorting that is happening on a larger, I mean for a number of period of months, so the more will be that short covering rally. But supposingly agar ye chota sa there has been this decline, and in this pullback there has been a short covering rally that is being triggered, तो ये जो up move है, तो that could be say 2 to 3 months as she mentioned. But broadly it depends on how big the short build up is, and from where and from when that is happening. So the more the short built up, the larger the the move can be when those short covering actually takes place. Okay. Hardesh is asking, does this data of rollover change every single day or only on the expiry day? So yeah, so rollover screen, which is basically this screen, as I mentioned, which is early positioning. This is the one that gets updated only on expiry. So that's why you will see a drop down over here. Okay, and so यहाँ पे, because now there has been different expiry for different index, so that's why we have given a drop down.
like for example, if you want to see for bank nifty, then there is one date. So 26 is where the major expiry happens. So that's where you will be able to see it over here. But this screen is updated only once when the expiry is done. So expiry ke end of the day pe the screen gets updated. But when you go to this part and there is this OI analysis or OI interpretation which is there, this gets updated daily. So this you will see it in the live market as well. And then at the end of the day, this value is overwritten by the EOD data. What about stocks like huge positive build up next month and showing long build up? So yeah, I think Do there we was need to this. avoid them? No, no, no. So there is, as I mentioned, I mean, you have to understand the trend of the stock. Okay. So I think one stock within this basket which I found interesting was Alchem. So Alchem, if you see, uska open interest had gone up from 8 lakh to almost around 22 lakh. So this might look like a very high open interest. So when I saw that only expiry to expiry chart, I found it interesting because I mean, when I saw expiry to expiry charts over here, actually I could see. Sorry, this is the chart of Alchem. So I can see that the open interest is very high. So this actually scares me a bit, but given that the trend was bullish, so I thought that let me check what is happening on the lower time frame. So then when I saw the lower time frame, so the sense that I got was that the open interest is that high. Okay, but what has happened is that there was a good meaningful consolidation that had happened over here, correct? And this almost, I think this consolidation lasted for 4 or 5 months, and after that the prices are breaking out and the open interest is rising higher. And in fact, I believe that in this correction only there was some sort of short built up. No, sorry, it was not over here, but I think in this case there was some bit of short build up that had happened over here. But anyways, as I mentioned, you have to see the trend. So जब prices break हो रहे हैं on the upside and the open interest is higher, this could be a sign that people are interested in the stock. And moreover, ये एक stock एक तो almost newly listed है in FNO. It has just 2-3 years of data, so nothing stops it from going to 7-8 million as well. So in such cases, you will focus more on the trend than on open interest. Open interest will just be a guide for you to know whether there is a lot of long built up that is happening or short built up that is happening. But I think eventually, if your price trend is bullish, so as long as that trend particularly prevails, open interest wouldn't matter much as long as the reversal is not happening. Okay, can you? Okay. In daily or 3 days time, which OI time frame and average is better? Not sure what So the. see, as I mentioned, no, no. So Hmm. as I mentioned, firstly we have OI only on the daily chart. We are not breaking up on the hourly chart, and OI analysis becomes a little more medium term sort of analysis method, not a short term के आज breakdown हुआ. So okay, you can just say that if the prices have broken a support level and the open interest has risen higher, you can tell that yes, there is a short built up that has happened today, and maybe that will have effect for next 2-3 days as well. But if the prevailing trend is down, that is the medium term trend is down, then that breakout would be an initial sign for you to understand that the medium term trend is turning down. I mean, like I showed in the UPL stock as well. I mean, this was in a downtrend, but then when the open interest broke out and the prices declined, okay, so that's where you ended up seeing a meaningful correction eventually. So you got to judge that a bit from the trend analysis as well. Okay, RRG weekly. Yes, Alok, we'll look into it. Why is this is not updating on weekend? We are not sure. We are looking into it. We'll solve the RRG. This one.
It's been long due. Every Saturdays it's been happening, so just need to figure out. Okay. Um, how are you able to find from the chart its short build up? Is it the price increase? We have already explained this. No, Yeah. yeah. But I'll just explain you once again. So, see, what happens is that you have to look at it a little more from the positional perspective. Like, say, for example, if the prices are falling over here, okay, and it is basically in this phase when the open interest is rising and the price is falling. So that is something that you take a judgment looking at the chart. But more so, if you want, we of course give you the data on day to day basis as well for you to judge whether a short build up is happening or long build up is happening. So for that, uh, I'll just explain you how this works. So in futures, we have this open interest OI interpretation. So this is where you get all the 180 stocks, or I mean 180, 185, whatever number of stocks are there, that you get it over here. Okay. And if you want to do a bit more granular data and you want the table or you want to download the Excel and so on, so what you will do is that you will click this button. You will see all the data over here to figure out whether this long build up is happening or short build up is happening. And in fact, as I mentioned, if you want an Excel, you just export it and you will get the Excel as well for that particular stock for you to analyze. I mean, if you are comfortable with Excel. Okay. Can you just take up a couple of stock questions on Siemens and Dr. Reddy? I already mentioned that, I guess. So, Okay. anyways, we'll take it again. But Siemens, like I mentioned, uh, this stock actually had a lot of long built up over here. I mean, here the open interest was very low, and this entire up move it has seen a meaningful long built up. But in the recent case, that is basically, so wait, let me put the vertical lines. So from year to year, from year to year, basically this was the open interest जहाँ पे long हुआ. Then from year to this decline, okay, there has been some short addition as well, and over here as well. Okay, as you can see in this phase, there is some bit of long built up that has happened. So now actually in Siemens, what is happening is that there is a tug of war between the bulls and the bears. Um so in terms of price action, we need to see a reversal. So when we look at the short and the medium term chart, so over here already the stock is not able to cross the 40-day average, and the RMI has given a bearish crossover. And on the weekly chart, the weekly RMI is in sell mode, but so far the stock was not breaking the 20 week, but only in yesterday's I mean this Friday's weekly close, it has broken the 40 week by a small margin. So I suspect that if we see a follow through in this stock, we might end up seeing some meaningful correction over here. And the ones where we are seeing a lot of long built up from the lower levels as well as somewhere over here, they might start covering their position, and that can probably trigger some down move. When I look at Dr. Reddy, over here, actually there was a meaningful short built up that we had seen it in during this phase. Okay. And then around this phase is where we saw some bit of long built up as well. So i I mean, looking at the chart, I sense that the people who have either shorted over here or over here, which is where you saw some bit of spike in open interest, so they have still not covered it. And I think once we get the breakout from this consolidation, we might end up seeing short covering, or maybe the trend followers who think that this is an uptrend, they might also start building positions and so on. So that is what my guess is looking at the chart, because when we look from the RMI perspective,
in this entire consolidation, it has beautifully come back towards the zero line, and now it is trying to give us a bullish crossover. Okay. Mm, is there a data point for Y percentile in strike? Rajiv Kurana. No, OI percentile, we don't have No, it at this. we'll yes, we'll have to bring it. We'll do work on it. Explain OI insights in strike. OI insights is altogether a different topic again. Amni and Janov. So what we'll do is next week or Yeah. the other next week we'll schedule the this one. In the meanwhile, you can go through this video, the strike So in OI the help insights. button, yeah, in the help button, if you go, there is the strike over insights. So strategy for option buyer. This is where we have explained it. Also, if you want to know a bit more, there are a couple of webinars that we did on strike OI. I mean, you can see this one, you can see this one. Yeah. So there the concepts are explained. You can go through that. And people who are watching this video and they wish to subscribe to Strike, you can go to my profile section and click on plans and billings, and you can choose the plan. Okay. Yes, definitely RS rating in Strike. We have already discussed Sushil with Himanshu ji, and we'll be doing the RS rating very shortly. Alerts is something, yes, lot of things needs to be developed. We are doing it one by one. Alerts is going to come on Strike platform. So let's wind up today's session. So those who are watching and yet to subscribe to Strike, go to my profile section once again. Jay, if you can show the screen, go to my profile section and click on plans and So billings, my and you can profile. choose the plan and you can subscribe. Okay. Right. The last question, Jay, from Rajiv Kurana: is it okay to say if the following reversal techniques and short covering is a better place to look, and for trend following long build up? No, so see, if you want to catch a stock at a nascent stage, okay, jab that stock is going to turn around, then it is better that you look out for a stock which has a meaningful short built up. Like I mentioned, I mean, you will be able to get it through this data. I mean, when say for example, I so I'll just show you how to navigate it in futures. If we go to rollover, and then within rollover, when we go to early positioning, this is one way for you to sort out. So यहाँ पे what you do is that, which is so places where the open interest is high, uh, okay, and the places where you have seen a correction. So say for example something like Naveen Florin. So these are all the places where this is a short builder, but sometimes, as I mentioned to you, this can be a little misleading as well. So you need to, so this sort of becomes your scanner, okay, where you scan that where are the places where there are short built up that is being seen. You can bookmark it and you can save it to your watch list, okay, and then you can check it one by one. So you can create a watch list over your short built up stocks, okay. Once you do this, say you added Naveen Florin over here. यहाँ पे when you go in the watch list, you will get this watch list, okay. So then you can do all your trend analysis and so on based on that. But yeah, I mean, basically this sort of screen will help you to find out the places where there is short covering or where there are interesting patterns. And also, what you might want to do is that, okay, just click over here and see, okay, what the chart is telling you. So if the chart is telling you that yes, the open interest is very high, then go inside the stock and try to find what is happening in the stock. I mean, whether people are long, short, and so on. So there you will try to, I mean, you will need to spend some time and do some analysis. We have tried to make it as easy as possible for you all. Okay. Thank. Okay. IV percentile on stock options, will it be available on platform in the near future? Yes. In the second phase of futures and options, Gauravji will be building it.
Can we have MWPL limits in OI graph? Definitely. Uh, Sharad Mehta, would you please share the link of its recording of this webinar? It's the same link. Where you're attending right now. Yeah. It's the same link. After this, live streaming gets over, immediately you can start watching the recording. So with this, let's wind up. Do subscribe to Strike, guys. We have already shown you where to go and subscribe. uh, and also tell your friends about Strike. They can also sign up, get the free trial of 1 week. Yeah. So So, Amni and Java, Shravan, how can we just one filter question. I think Ambi has sent one question. How can we filter stocks stocks after after making making? watch list? Okay. So let me show you this because this is important. So say for example, I'm just taking random stocks right now. Say for example, I mean, I was giving this example of how to create this watch list. Um, what you did is that say comments. I feel that this is like a bearish stock or anyways. I mean, you can take it anyways. So say randomly, I have selected 7 8 stocks and I've put it in basically uh, yeah, short built up stock. This was the one which I've built it. So यहाँ पे when I add these stocks, add to watch list, what it happens is that it comes in my watch list. Okay, uh, short built up stocks. Okay, now if you want to do an RMI scanner over it, okay, or for that matter, if you want to do any scanner, just go to the scanner. Okay, go to RMI. Okay, now instead of all this basket, you simply click on short built up stocks and it will tell you how the RMI is behaving on different time frames for you. So you can simply just click and you can understand what the trend is. So this might make your life a little easy if you want to see how is it behaving on RMI. Okay, with this, thank you so much, Jay. Wonderful session. Again, we'll meet next weekend with a new topic. Um, yeah, what should be the next week topic? If you can put it in the comment section, that will be a great suggestion for us to take it. Do you want to study about RMI, or do you want to study about strike war insights, or any other topic? You want to put it in the comment section. So okay, I think Chavan will take their suggestion on Twitter. Yeah, We can post it on Twitter and get their suggestion. sure, Right now, sure, they might be absolutely. grappling with over Yeah, rollover open interest in all. yeah, So, sure. thank RRG combo with RMI. Wow. Okay. Next webinar, yes. Again, either next Saturday or Sunday we are planning. So just needed some topics. What topic you want to hear out on? Uh, Analyzing future positions. We have already done this week. This was the same topic what we took. Okay. Anyways, let's post it on Twitter and then take the feedback. With this, thank you so much, gentlemen, ladies and gentlemen. Thank you. Subscribe to Strike. Start using it. Analytics on Strike is the best. You don't need any other uh, softwares other than Strike. So thank you so much. thank Bye you bye. guys. Thanks for joining on Sunday. Yeah.